A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So you know that in the last class we have started to solve the CBSE sample paper which is issued by the CBSE of the year 2021 and 22. So in this last class we have discussed some questions related to the CBSE sample paper. In today's class also we are going to discuss some another or the further questions related to the CBSE sample paper, and you know that there will be a 60 questions on which you have to attempt only 50 questions, and the questions are divided into 3 sections. In the first section there will be 24 questions and you have to do any of the 20. In section B also same, and in the third there will be 12 questions and you have to attempt any 10 questions. Okay, so these all are the general instruction that we have already discussed in the last class. So let's start to solve some another questions related to the CBSE sample paper 2021 and 22. Okay. So question number 4 is, identify which of the following is not an example of the invisible items. Is not an example of invisible item under current account of the BOP transactions. Okay, so पहला है एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, बी इज पोस्टल एंड कुरियर सर्विस, सी इज education related travel, and the D is merchandise linked transactions. Okay, so क्वेश्चन क्या दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इनविजिबल आइटम. आपको याद होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं. पहला होता है आपका करंट अकाउंट, सेकेंड होता है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो current account are those account who doesn't affect the asset and liability status of the government. ठीक है, जो asset and liability status गवर्नमेंट की अफेक्ट नहीं करता है, जिसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, इनकम फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट होता है आपका कैपिटल अकाउंट. सो आर दोज अकाउंट विच अफेक्ट द असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कैपिटल ट्रांसफर होते हैं, गवर्नमेंट के लोन्स हो गए, गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स कहाँ पे किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे किसमें होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो, ऑफिशियल रिजर्व्स, वो सारे कैपिटल. तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इनविजिबल आइटम. इनमें से कौन सा इनविजिबल आइटम का एग्जाम्पल नहीं है बीओपी ट्रांजेक्शन्स के. ठीक है, सो सबसे पहला है एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट. एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आपको पता है, इट इंक्लूडेड इन दी सर्विस सेक्टर. ये सर्विस सेक्टर में आता है, सो इट विल बी नॉट. पोस्टल एंड कुरियर सर्विस, इट इज ऑल्सो दी सर्विस तो होगा नहीं, क्योंकि हमें इसमें से बताना है कि कौन सी सर्विस नहीं है. ठीक है, हमें बताना नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम. इनविजिबल आइटम में हम सारी सर्विस लिखते हैं, तो ये तो ऑलरेडी सर्विस का एग्जाम्पल है, ये होगा नहीं. ये भी सर्विस है, ये भी नहीं होगा. एजुकेशन रिलेटेड
वो भी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द सर्विस, ये भी नहीं होगा। मर्केंटाइज मीन्स लिंक ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन, इट इज़ ऑल दीज आर दी विजिबल आइटम्स। ये क्या होता है कि विजिबल आइटम्स होते हैं, बिकॉज इसमें ट्रांजेक्शन्स किसका होता है, डिफरेंट गुड्स का, ठीक है। तो जो भी इसमें ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो किसका हो रहा है, गुड्स का हो रहा है। सो इट विल बी योर विजिबल आइटम्स। So let's move to the another question. The next question is question number 5. Yes. The question is given here. Question number 5. Read the following statement. Read the following statements carefully and choose the correct alternative. Choose the correct alternative from the following. Choose the from the following. The question is given as the statement 1. Statement 1. So statement यहाँ पे दे रखा है. Statement is that is demonetization. Demonetization was the step taken by the government in order to tackle the problems of corruption, black money, terrorism, and circulation of fake currency in the Indian economy. Okay. So this is the statement 1 is given here. Now the second statement is also given, that is statement 2. Statement 2. Demonetization has ensured improved tax compliances in
in India over the period of time. In India over the period of time. Okay, so two statements are the given. Okay, अब इसमें कह रहा है एक ऑल्टरनेटिव्स दिया है. ऑल्टरनेटिव्स ये दिया है कि 4 दे रखा है. पहला कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू. सेकेंड बी है दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स. थर्ड इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. फोर्थ ऑप्शन इज स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 1 इज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, सो दोनों ही आपका कंडीशन है. यहाँ पे देखते हैं दैट इज ऑल्टरनेटिव्स. उस ऑल्टरनेटिव्स में ही आपको क्या करना है, करेक्ट करना है. आपको चूज करना है कि कौन सही होगा. सो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू. ओके, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू. बी ऑप्शन बोथ दी स्टेटमेंट आर फॉल्स. सी ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. Option B, statement 2 is true and statement 1 is false. ओके, सो ये स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है. ठीक है, ऑल्टरनेटिव्स में कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं. बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं. नेक्स्ट कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 1 सही है और 2 फॉल्स है. और लास्ट कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड द 1 इज फॉल्स. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. यहाँ पे आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं इसको. ओके, देखिए इसमें कह रहा है बेसिकली कि स्टेटमेंट 1 है दैट इज डीमोनेटाइजेशन. Demonetization was the first step taken by the government in order to tackle the problem of the corruption, black money, terrorism and circulation of the fake currency in the Indian economy. ठीक है, जो भी demonetization था वो स्टेप था which is taken by the government. गवर्नमेंट ने लिया था. क्यों लिया था, जो भी सारी प्रॉब्लम्स है which is related to the corruption, हमारी कंट्री में करप्शन था, ब्लैक मनी है, टेररिज्म था एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी की जो भी फेक करेंसी वो सर्कुलेट हुई थी इंडियन इकोनॉमी में. सो डीमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड. स्टेटमेंट 2 इज सेइंग दैट डीमोनेटाइजेशन ने इंश्योर किया इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंसेस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ. ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी क्या था, जो जिसके पास भी फेक करेंसी थी या था वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बैंक जा रहे थे. बैंक क्यों जा रहे थे, बिकॉज दे हैव टू कन्वर्ट देयर मनी. अगर वो कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो मनी क्या हो जाएगी, अनयूजफुल हो जाएगी. इफ दे आर गोइंग टू दी बैंक, सो उनका प्रॉपर अकाउंट दिख रहा था बैंक में, तो ये पता चला था कि देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द इलीगल एक्टिविटीज़. इलीगल एक्टिविटीज से भी उनकी बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हुई. तो जब उनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ द इनकम आर शोइंग, तो अब वो क्या था, उससे क्या होगा कि वो दे हैव टू पे द टैक्स. अभी ऐसे क्या कर रहे थे लोग, टैक्स इवेजन कर रहे थे, टैक्स को शो नहीं कर रहे थे बिकॉज अपनी इनकम को वो शो नहीं कर रहे थे ज़्यादा, इसलिए उन पर टैक्स इम्पोज नहीं हो रहा था. अब क्या था, लोगों की इनकम दिख रही थी, उस पर टैक्स भी ज़्यादा इम्पोज हुआ. तो उसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन ने इंश्योर किया इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंसेस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ. सो इसमें आप दोनों को पढ़ के दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहा है कि हाँ दोनों ही डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ. सो ऑल्टरनेटिव 1, दिस वन इज राइट. So if you correct this one, so you will get 1 mark in this question also. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में भी 1 मार्क इजली मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नाउ मूविंग टू दी अनदर क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर
6. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? मिस साक्षी an economics teacher was explaining the concept of the minimum percentage of total deposit to be kept by any commercial bank with the central bank of the country as per the norm and the statute prevailing in the country. So from the following, choose the correct alternatives which specify towards the concept of the explaining by her. Okay? So Miss Sakshi, she is an economics teacher. Economics teacher was explaining the concept of minimum percentage of the total deposits to be kept by any commercial bank, of the country as per the norm, prevailing in the country. From the following, choose the correct alternative which specifies towards the concept of explained by her. ठीक है? So इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? That is cash reserve ratio, repo rate, bank rate, and statutory liquidity ratio. ठीक है, ये सारे इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, जिसमें कह रहा है कि मिस साक्षी क्या है, वो इकोनॉमिक्स की टीचर है. शी वॉज एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगी जिसमें क्या था, मिनिमम
परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, कि टोटल डिपॉजिट का मिनिमम परसेंटेज टू बी केप्ट बाय एनी कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं वो रखते हैं किसके पास, टू दी केप्ट बाय दी एनी कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, टू दी central bank as per the norm and statute prevailing in the country. So from the following आपको इसमें से चूज करना है कौन से ये कौन से कंटेंट को, कौन से टॉपिक को शी वॉज एक्सप्लेनिंग. ठीक है, तो हमें पता है कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है. कैश रिजर्व रेशियो इज द रेशियो इट इज द minimum percentage of the total deposit that all the commercial bank have to be kept with the central bank as per the norms. Okay, so whatever the norm जो डिसाइड किया है किस परसेंटेज पे टोटल डिपॉजिट का जो परसेंटेज वो कमर्शियल बैंक के पास रखता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. फॉर दिस वन इज करेक्ट आंसर, दैट इज cash reserve ratio. So the option of the 6, the correct answer will be the A. So from this you will get the 1 marks more, 1 मार्क आपको और मिल जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6. Now the next one is, that is question number 7. Okay, question number 7. Miss Sakshi, sorry, it is already done. There is two friends are there. That is Meera and Sindhu. Okay, two friends are Meera and Sindhu. They were discussing about the exchange rate system. वो लोग क्या थी, वो लोग exchange rate system के बारे में डिस्कस कर रही थी. So under this system, the exchange rate are determined by the market forces of the demand and supply. However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range. ठीक है, चलो. Okay, so question number 7. Question number 7. Two friends, Meera and Sindhu, were discussing the exchange rate system. The exchange rate system okay, so what they said, under this system the exchange rate are determined by market forces. Market forces, you know what are the different market forces? That is demand and the supply. Okay, market forces. However, deliberate efforts are made by competent authority
mentioned statement was given by Sindhu. The above mentioned statement are given by Sindhu. Identify the type of exchange rate system was she talking about? ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू फ्रेंड्स दैट इज मीरा एंड सिंधु वर डिस्कसिंग द एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, टू फ्रेंड्स वर देयर। ठीक है, टू फ्रेंड्स थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट डाउन द ऑप्शन, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ना। सो द ऑप्शन इज fixed exchange system. Second one is floating exchange system. Third is managed floating exchange system, and the D is managed fixed exchange system, right? So it is given in your question. क्वेश्चन में दे रखा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टू फ्रेंड्स, ठीक है, टू फ्रेंड्स थी दैट इज मीरा एंड सिंधु, वो क्या कर रही थी, एक्सचेंज रेट सिस्टम पे डिस्कस कर रही थी। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो एक्सचेंज रेट होता है, जो वो डिस्कस कर रही थी जिस सिस्टम के बारे में, उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस सिस्टम के अंदर क्या एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। ठीक है, आपको पता है जो भी डिफरेंट मार्केट फोर्सेस क्या क्या है, मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड, ठीक है, एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन कर रहा था, एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। वो डिटरमाइन, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है किसके हेल्प से, एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई। हाउएवर deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rate within a specific range। ठीक है, जो भी एक एफिशिएंट अथॉरिटी है वहाँ की, वो भी क्या कर रही है, एक्सचेंज रेट को स्पेसिफिक रेंज में एक फिक्स करने के लिए हेल्प कर रही है। ठीक है, बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, सो द अबव मेंशन स्टेटमेंट आर गिवन बाय द सिंधु। ठीक है, ये दोनों डिस्कस कर रहे थे, बट सिंधु ने ये सारे स्टेटमेंट को बोला। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज शी टॉकिंग अबाउट। आपको ये बताना है कि किस टाइप के एक्सचेंज रेट के बारे में ये सिंधु। सबसे पहले हमें ये याद करना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम आर देयर। सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कितने टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो भी रेट होता है, ठीक है, whatever the rate are is determined by the government। okay, कि $1 is equal to the 50 rupees, $1 is rupees 60 rupees, it is determined by the government। floating exchange rate system होता है जब जो भी एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन कौन करता है, ओनली दी मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, वही डिटरमाइन करेंगे। $1 विल बी द 60 और $1 विल बी द 50। नेक्स्ट होता है दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। So you know in India managed floating is prevalent. So managed floating में there is, it is the combination of the fixed as well as the flexible.
दैट मीन्स इसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है एज वेल एज दी मार्केट फोर्सेस का। ठीक है, तो आपको पता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम। तो यहाँ कोई कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है, तो आपको पता है सी विल बी द राइट एंड इफ यू डू